अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी होस्ट हुमैरा कुरैशी एक बार फिर हाजिर है आपके प्रोग्राम ह्यूस्टन लाउंज विद हुमैरा में। नाजरीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, इसके अलावा एक लिविंग लेजेंड उस्मान पीरजादा साहब। आज उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है और हम चाहेंगे कि उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस और उनकी ज़िंदगी के बारे में इस शो के ज़रिए आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करें। तो चलिए उस्मान साहब से बातें करते हैं। वेलकम टू माय शो उस्मान साहब। जी, आई एम गुड। अस्सलाम वालेकुम टू द व्यूअर्स एंड टू योरसेल्फ आल्सो। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हम चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा रिकैप लें। कहाँ से आपने बचपन शुरू किया और कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई? अरे ये कहानी सुना सुना के तो हम थक चुके हैं। कहाँ से जिंदगी शुरू हुई? जाहिर है, आई वाज बोर्न इन लाहौर और यहीं पे स्कूल हुई। I went to Government College Lahore for 6 years and of course began my interesting and exciting career. And there were lots of ups and downs, and God has been very kind that we were able to do some very interesting work. People know me as an actor, but you see, we've been involved into a lot of creative artistic work here. Like World Performing Arts Festivals that we developed. And Rafiq Theatre Workshop Cultural Center is constantly engaged in creative activity that we do. And I wish and hope to God that we are able to do it as long as we live. Work has been interesting and नहीं, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मेरे ऑडियंस को पता चले, एंड वी नो कि आपने तो इस बात को बताया होगा, लेकिन हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि जैसे आपका बचपन था, व्हाट वाज डिफरेंट और यूनिक अबाउट इट, और इट वाज जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस। आपकी फैमिली में कौन कौन था? देखिए, You know, I was born in another Pakistan. I was not born in this Pakistan that we are talking about right now. वो एक बड़ा ही खूबसूरत पाकिस्तान था. I am 71 years old now, and my childhood and my growing up, my adolescent, and as a young student in government college was very exciting. Pakistan had a very interesting liberal Muslim face, you know. That's right. And Mullah has not yet entered our religion. So religion was taught to us by our parents, by my mother, by my father, and some very interesting teachers that we grew up with. They told us about the values of life. They told us कि झूठ नहीं बोलना. They told us किसी के साथ आपने कोई धोखाबाजी नहीं करना, किसी का हिस्सा नहीं मारना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करना, किसी की आंख से आपकी वजह से आंसू ना गिरे. You know, so these were the family जो आप एक अच्छे आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए चीजें होती हैं, वो हमारे साथ बिल्कुल वही सब कुछ हुआ. So this journey was very interesting. College life तक I ended up studying English literature, my master's in English literature. तो वो कोई अम्मी अब्बू का प्रेशर था कि I was constantly involved in theatrical activity at that time in the college days. सरमद सबाई साहब हमारे बड़े एक उस जमाने के आज भी एक बड़े उम्दा राइटर जिन्होंने एक नई रवायत को जन्म दिया जब in the 70s, late 60s and 70s. Essentially, Sarmad Sabai was a poet, but he came out with some very interesting dramatic pieces that he wrote.
And one of the most famous of his plays that we produced and directed and acted in was called Dark Room. The play was directed by Shuaib Hashmi Saab, and we really enjoyed doing that. And for an instance at that time, we were deeply involved with theatrical activity. Rather, television एक नई नई चीज आया हुआ था. 67, 68 के अंदर I did a few things. I was selected to perform on television. But television at that time. What excited us was the real audience, was the interaction, and was, how can I explain, the sheer pleasure of doing theater. हमें एक चीज जो मुझे बहुत कैंडिडली जो सामने थी कि हमारी थिएटर की रिवायत हमारे अब्बा ने जो डेफिनेशन थिएटर के बारे में कही, वो I personally feel that I have never heard such a complete definition of theater. He said, रफी पीर साहब की रफ्सों में है कि ड्रामा शेर और मौसीकियत से लबरेज आवाज में नाचते हुए गाते हुए अफराद की ख्याल अफरोज हरकत के सैले रवां का नाम है, जिसके मुशाहिदे से वजदान इंसानी में सरखुशी के अबदी चिराग जल. वाह वाह वाह. तो हम वो अबदी चिराग जलाने के लिए जलाते रहे और उसके अंदर हम अपने ख्याल अफरोज हरकत भी करते रहे, और वो एक सैले रवां था जिसमें हम बहते और डूबते निकलते ये काम जो है ये करते चले गए. अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम उसी यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है ड्रामा को एज अ करिकुलम पढ़ा नहीं रही थी. देयर वाज नो स्कूल्स फॉर थिएटर. You could not go for acting, learning acting. Where do you go and learn acting? There were no acting schools. So we had to resort to learn from each other, and we learned the craft by looking at other great actors performing and learning from their experience, and seeing how wonderful work people who are doing all over the world. So we were very aware, I was very much interested into watching some classical cinema. And Government College Lahore had a great film library where we had the classics, where we had the Russian cinema, where we had हमारे पास Japanese cinema की बहुत उम्दा कई फिल्में अकीरो कुरोसावा की थी, और फिर फ्रेंच न्यू सिनेमा की चीजें थी. उनको देखने का बहुत इत्तेफाक हुआ, क्योंकि ये वो फिल्में थी जो कि आपको आमतौर पर सिनेमा घर में नहीं मिलती थी. लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की एक बड़ी सॉलिड लाइब्रेरी थी, तो वहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग काम पड़ा हुआ था जो हमने बहुत उस जमाने में खूब देखा. और दूसरी ये कि उस दौर में जब हम कॉलेज और स्कूल में थे, तो इस काम में आने के लिए मेहनत जो थी वो हमने बाकायदगी से की. इसको बहुत सीरियसली मैं समझता हूँ कि उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि हमने इस काम से पैसे भी कमाने हैं, क्या ये हमारी जिंदगी का रोजगार फराहम करने का भी जरिया बनेगा, या ये सिर्फ वो वाली एक्टिविटी, वो हॉबी रहेगी जो कई हमारे और दोस्त उनके लिए हॉबी थी. लेकिन मेरे लिए ये हॉबी नहीं थी. आई वॉन्टेड इट एज माई ओन करियर. अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं? चॉइसेस बहुत कम है आपके पास. या तो आप अंग्रेजी जुबान, अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ाना शुरू कर दें किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, या आप किसी अंग्रेजी जरीदे में कॉलम लिखना शुरू कर दें और जर्नलिस्ट बन जाएं, या फिर जो टॉप ऑफ द लाइन था कि आप इम्तिहान देके CSS के ऑफिसर बन जाएं. तो हमें ये सारी चीजें जो है करने की अहलियत शायद नहीं थी. तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये नाचने गाने का काम ठीक है, ये आप कसरा नफसी से काम ले रहे हैं. इसमें जो है
इसमें जो हमारी क्रिएटिविटी है वो हमको उसको पॉलिश करना है। और उसको पॉलिश इसी तरीके से किया जा सकता था कि आप किताबें पढ़ें, आप इंटरव्यूज देखें, आप ड्रामे पढ़ें, दुनिया भर के जो जबरदस्त और खूबसूरत खेल हैं उनको देखें कि क्या किस तरीके से राइटर ने उनको एनकम्स किया है। शेक्सपियर का जब पढ़ना शुरू किया तो फिर एक और बाब खुलना शुरू हुआ हमारे सामने। तो लुक्स लाइक मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लग रहा है कि आपकी जो पेरेंट्स थे वो भी काफी लिटरेचर की तरफ उनका रुझान था, इज दैट राइट? जी, मेरे वालिद जो थे, he was trained in Berlin in the 20s for the art of cinema and theater. He worked with Max Reinhardt. Max Reinhardt, जिनको आज हम जानते हैं as the father of the modern European drama, वो मेरे बाप के उस्ताद थे। और ये शायद ट्रेनिंग जो है वो हादसाती तौर पे अब्बा ने की। बेसिकली वो ट्रेनिंग पढ़ने के दौरान उन्होंने कहा कि ये स्पीच क्राफ्ट के लेसन्स की जो हो रही है बर्लिन एंसेम्बल में, तो ये मुझे क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, एक्टिंग के लिए नहीं, पॉलिटिकल ऑरेटरी के लिए। अच्छा। क्योंकि अब्बा जो हैं जिस दौर में हिंदुस्तान से, तब पाकिस्तान नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान था, तो उस टाइम पे he was a young man when खिलाफत movement was happening. World War I had just ended. तो हमारे अब्बा की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की हुई थी और उनके साथ ही घूमते थे शहर दर शहर। ये वो बच्चे थे जो, अब्बा उन बच्चों में से थे जो मजमा गर्म करने वाले होते हैं ना, बड़े लीडर के आने से पहले जरा खूब हंगामा करके और बड़ा मजमे को गर्म करने वालों में से थे। अच्छा। तो वो एक एक्सपीरियंस था उनका जहां तक स्पीच का ताल्लुक है। ही वाज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम मौलाना मोहम्मद अली जौहर। और अब्बा की दूसरी इंस्पिरेशन थी अल्लामा इकबाल, बिकॉज अल्लामा इकबाल की लिटरली ही सैट इन हिज लैप, बिकॉज अल्लामा और मेरे दादा जो हैं वो बहुत ही करीबी दोस्त थे, बैरिस्टर पीर ताजुद्दीन, वेरी क्लोज फ्रेंड। सो उनकी ये दो इंस्पिरेशंस थी। तो एक इंस्पिरेशन अल्लामा की तरफ से तो वो पढ़ने चले गए फिलोसफी हाइडलबर्ग में, और हाइडलबर्ग में फिलोसफी 4 साल पढ़ने के बाद जब बर्लिन पहुंचे, तो बर्लिन एट दैट टाइम, यू सी, इफ यू गो बैक इनटू 20s, इट इज कॉल्ड द गोल्डन 20s, जिसमें बर्लिन जो है दैट वाज सेरेफेरिस्ट, यानी कि थिएटर और सिनेमा, दुनिया की पहली फीचर फिल्म वहां पे बन रही थी, डॉक्टर कैलिगरीज कैबिनेट, जिसपे मेरे बाप ने उस यूनिट में काम किया। और फ्रिट्ज लैंग उस टाइम पे दुनिया की पहली साइंस फिक्शन फिल्म बना रहे थे। I only understood one thing at that time, that there is nothing called highly educated. You can, I learned even from floor के ऊपर जो हमारे प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जो लाइटों को ऊपर से ठीक करते हैं, आपके ऊपर लाइट फेंकते हैं। That's true. I even learned from them. You see, I learned from my crews, I learned from everybody. अच्छा। So I don't think कि हाईली एजुकेटेड हम किसी और फील्ड में थे। अब एक जो एडिटर है शायद उसने एफए भी पास नहीं किया हुआ, लेकिन वो अपने काम का हाईली डिसिप्लिन्ड आदमी है, अपने काम का और अपने क्राफ्ट को वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। So we can't do that कि आप जी पढ़े लिखे कितने हुए हैं। हमारे जमाने में बहुत सारे लोग जो एमए कर रहे थे वो जाहले मुतलिक भी तो थे। आफ्टर इवन दैट डिग्री दे वर जाहले मुतलिक, यू सी। सो एजुकेशन एंड लर्निंग is another thing altogether. They're two different things. I think when you are passionate about something, so you जो आपका passion है for a particular thing, whatever it may be, you could be just a cook, you could be just a hair cutting guy, you know, a hairdresser, you could be a fashion designer, you could be an artist, a painter, you could be whatever, you know. So do you really enjoy doing what you're doing? Do you have the passion for it? That's right. That what you are doing, or you're just hanging on and wasting your time? You see, I was not there to waste my time. I was not even hanging there. I was passionate about what I was doing.
and I'm grateful that I'm still doing what I really wanted to do. You see. नाजरीन वापस नहीं जाइएगा, हम अभी दोबारा आ रहे हैं। जी नाजरीन, तो हम वापस आ गए हैं और हमारे साथ उस्मान पीरज़ादा साहब मौजूद हैं। चलिए फिर से उनसे बातें करते हैं और उस्मान पीरज़ादा की बहुत सारी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। इसके अलावा उनकी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए पहली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। उस्मान साहब, आप देख रहे हैं, ये क्या याद दिला रही है? दिस इज हमारे निकाह के टाइम की तस्वीर है ये। अच्छा, तो ये बताइए कि समीना से कैसे मुलाकात हुई, ये निकाह का टाइम कैसे आया? समीना से मुलाकात मेरी, आई वाज डूइंग माय फर्स्ट मेजर सीरियल कॉल्ड दूसरा आदमी। वहाँ पे रावलपिंडी का टीवी स्टेशन जो चकलाला में था। तो समीना तो कराचीआइट हैं, कराची में रहती थी, वहीं पे वो पढ़ रही थी, बीकॉम कर रही थी। तो वो छुट्टियों पे आई हुई थी अपने मामू के यहाँ। मामू जान का उनके घर चकलाला टीवी के बिल्कुल करीब था, और उनकी जो एक कजन है, शी वाज एक्टिंग इन द सीरियल एज माय डॉटर। सो दैट्स व्हाई वी मेट, एंड हमारी एक मीटिंग जो है, फिर और मीटिंग्स हुई, एंड देन शी केम टू लॉ, and I invited her home. She met my mother, she met my sisters and my father. And that was 1973. So we got married in 1975 on the 14th of February. So we just celebrated 47 years of our married life. Acha. So who proposed, you or her? Ji. Who proposed? She proposed you or you proposed her? Who took the first step? In what? Proposal. She proposed to me. She said, "Will you marry me?" Point blank. And I just looked at her. We just met, and I looked at her and I said, "Oh," and she said, "Will you marry me?" And I said, "Okay." And anyways, I mean, I think marriages are in your destiny, you see. So it was in my destiny that we get married so young. And I used to give lectures to my friends कि 35 साल से पहले खबरदार किसी ने शादी नहीं की। So I got married when I was about 20-21, and Samina was just 17 or 18, you know. And we've had long innings, and we have two wonderful daughters. मेरी दोनों बेटियां जो हैं वो कनाडा में पढ़ी हैं। मेरी बड़ी बेटी अनंत Pirzada has studied at Concordia University in Montreal. Oh, wow. And my younger daughter Amal has studied in Toronto. In OCAD, Ontario College of Art and Design. So badi beti ne like gender studies, women studies. Oh God, this yeah. This is a photograph I did for a friend of ours called TJ. TJ was a dress designer, making mostly shalwar kameez for men and women. Wow. तो ये उनके लिए promotional photography session किया था magazine के लिए जी. Well, this is we are at my little ones. Yeah. जी. Let's see. Hello. जी मैं ये कह रही हूँ कि ये आपकी बेटियां हैं जिनका आप बता रहे थे कनाडा में। जी। तो ये जो हैं कब से कनाडा में कब से हैं? जी कनाडा में कब से हैं? जी। They've studied there, and both of them are. My younger one is married, and she's going to have a little baby. So for the first time, Samina and myself will become grandparents, and the baby is, mashallah, congratulations, due very soon. तो ये तस्वीर यानी उनके बचपन की है और देखें कितने साल गुजर गए। जी। अच्छा, तो बेटियों से हाउ ऑफ्टन मुलाकात होती है?
This photograph that you see is done in Delhi. I was and Samina, we were there with her theater production at the National School of Drama's Theater Festival. अच्छा, तो ये पूरी आपकी बेटियों की फैमिली पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये कहाँ से आपने तस्वीरें जमा कर ली हैं? देखें, हम आपके फैन हैं और आपके बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे। जी, these are my daughters, the one with जी, दोनों मेरी बेटियां हैं। तो इनमें से किसी को इंटरेस्ट है कि आपने कहाँ से जमा किए हैं? इनको इंटरेस्ट है कि आपकी तरह ये भी शो बिजनेस में आगे बढ़े? देखिए, we've never pressurized or told children what to do. They decided their own careers, you know. छोटी मेरी बच्ची जो है वो पेंटर बनना चाहती थी, तो माशाल्लाह वही स्टडीज उन्होंने की। मेरी बड़ी बेटी जो है अनम, उन्होंने औरतों की स्टडीज की है, सब्जेक्ट वही रखा, लेकिन उनका ज्यादा इंटरेस्ट culinary pursuits में है। She's been running a restaurant in Toronto. अच्छा, Working there to learn the craft of because she wanted to have a restaurant of her own. So the best way is that you start working in a restaurant, and वो restaurant इनके दो दोस्त हैं वो बना रहे थे, तो she joined them. अच्छा, And she enjoys food. She's a foodie person. She loves food and she cooks very well. अच्छा, She's taken it from me because I enjoy food and I cook myself. वाओ, And that's why I have a restaurant here in Lahore. अच्छा, So, कौन सा yeah, रेस्टोरेंट है? that's it. अच्छा, क्या नाम है उस रेस्टोरेंट का? Piruz. अच्छा, तो इसका Piruz is a very interesting restaurant, yes. अच्छा, तो दैट मीन्स कि जब भी हम लाहौर आए हमें वी हैव टू ट्राई योर रेस्टोरेंट फूड। जी, you have to, because जिस तरह कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, तो ऐसे जो लाहौर आया और पीरूज पे खाना नहीं खाया वो फिर लाहौर नहीं आया। अच्छा, ये तो आपका निकनेम भी है ना, पीरू, उससे पीरूज, राइट? जी, my friends call me पीरूज। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि आप और समीना पीरजादा, ये पिक्चर है दोनों की, ये कहाँ की है, किस वक्त की है, कुछ याद पड़ता है? ये जो आप हमें यंग डेज में देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ हमारे एक सेशन की है जो मैंने पहली पिक्चर जो लिखी थी और डायरेक्ट की थी, नजदीकियां। तो समीना की पहली पिक्चर थी एज एन एक्टर, एंड ये वो सेशन की तस्वीर है पोस्टर के लिए जो हमने खींची थी। अच्छा, माशाल्लाह, दैट नजदीकियां और फिल्म won 4 national awards. वाओ, एंड वो जो दूसरी तस्वीर है वो समीना की के नेफ्यू की शादी पे खींची है कराची में, रिसेंटली, अबाउट a year and 2 years back, yeah. तो आप और समीना दोनों एक सक्सेसफुल शो बिजनेस में दोनों कामयाब हैं, तो कैसा घर में कैसा फिर रहता है, कैसे बैलेंस मेंटेन होता है? घर में बैलेंस से मुराद, we are both in the same profession literally. So, and we've grown up together. See, हम इकट्ठे बड़े हुए हैं दोनों। अच्छा, So we are friends, and हमारी और political गुफ्तगू भी होती है और non political गुफ्तगू भी होती है, क्योंकि I am non political totally, but समीना is वो थोड़ी सी फोकस रहती हैं कि क्या हो रहा है। मुझे ये होता है कि जिस तमाम पार्टीज जो हैं, they should work towards the building up of our country. They should not be fighting with each other, you know. खैर, anyways, वो एक और बहस है, हम उसको नहीं पढ़ते हुए। तो हाँ, तो घर में जो फिजा है वो हमारा, क्योंकि काम देखिए मेरा ज्यादा लिखने पढ़ने का काम है आजकल। I'm writing a couple of scripts. एक हम अपने वालिद का जो ड्रामा है अखियां पंजाबी का, I am we are trying to work out and make a film. So I'm writing the screen version of that play, which is a Punjabi Zuban ka classic
ड्रामा है और पंजाबी जुबान का पहला मॉडर्न प्ले है, उससे पहले एग्जिस्टेंस नहीं है ड्रामे की पंजाबी जुबान के अंदर। वेरी इम्प्रेसिव। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। उसमें हमारा कुछ लिखाई पढ़ाई में भी टाइम गुजरता है। फिर ये जो कल्चरल सेंटर हम रन करते हैं, जहाँ पे म्यूजियम ऑफ पॉपिट्री है और जहाँ पे थिएटर है, जहाँ पे वहाँ पे हम एक्टिविटीज जो होती हैं प्लान करते हैं। अब मैं रेगुलरली थिएटर करने का वापसी से फिर से सोच रहा हूँ, बिकॉज थिएटर इज समथिंग व्हिच इज फ्रॉम माय हार्ट एंड आई वुड लाइक टू start doing my theatrical work now with young actors. So ये भी सिलसिला चल रहा है। फिर हमारा बहुत सारा काम जो है is with organizations, like we work constantly with drug abuse, we work with family planning, we work with organizations like Oxfam and all on women rights and women issues, you know. So we are very much focused into these things because that's how we can bring some change in our society, you know, by awareness projects हमारे कुछ हैं जिनमें फिर educational projects आ जाते हैं जो हम बच्चों के लिए करते हैं। ये हमारा पपेट शो जो होता है ये सिर्फ ऐसे ही एंटरटेनमेंट का नहीं काम है कि सिर्फ इसमें एंटरटेनमेंट ही हो रही है। इसके अंदर बाकायदगी से शुगर कोटेड पिल की समझ लें, एंटरटेनमेंट के साथ यू आर गिविंग इन सम लर्निंग, यू आर गिविंग इन सम सोशल वैल्यूज। हमारी जो सोसाइटी के फैब्रिकेशन है उसके लिमिट्स में रहते हुए we do things with children. That's very very impressive. बस यही मैं जानना चाह रही थी कि जब एक अच्छा कपल होता है, ज़हनी आसूदगी होती है, तो कामयाब भी इंसान ज़िंदगी में भी आगे अच्छा बढ़ता है। तो ये पिक्चर किस वक्त की है? ये सारी रीसेंट पिक्चर हैं some of them. अच्छा, ये वाली जो है ये भी मेरा शायद पिछले साल की है या 2-3 महीने पहले की है, I don't remember it now. अच्छा, pretty nice picture. अब ये बताइए कि लाहौर ज़्यादा अच्छा है कि कनाडा जाते हैं तो कुछ लाहौर से मिलता हुआ लगता है, कोई सिमिलैरिटी लगती है कनाडा में आपको? कनाडा में तो मैं तकरीबन 8-9 साल से रेगुलरली बीन गोइंग सिंस हमारी बेटियां वहाँ पे पढ़ रही थी, तो हम 2-3 महीने वहाँ पे गुजारते थे। जी। समीना तो भाई बल्कि स्ट्रेचेस में रही हैं, 1-1.5 साल भी रही हैं वहाँ पे। अच्छा। कोविड खास तौर पे जब आया था, so but Canada is an interesting country, but I don't want to live there. I would like to live only in my country, Pakistan, you know, and that's why I've never opted for another nationality or something, you know, because it's. That's right. I think I wish Pakistan progresses. I wish what we are suffering from, ये चीजें खत्म हो. There should be education for our people here, and Allah खैर करे इस तरीके से हमारे मुल्क में इस वक्त मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को. अब ये एक लंबी बहस है, इसमें मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अच्छा ये बताइए कि आपके भाई भी हैं, आपके एक भाई हैं वो जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके एक भाई भी हैं इमरान पीरजादा, वो भी शो बिजनेस में ही होते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। उन्होंने भी आपके साथ ही शुरू किया था? इमरान अमेरिका में रहते हैं। अच्छा जी, मेरे छोटे भाई हैं, but he's an American citizen and he lives in America and he has one daughter, mashallah, and daughter has done very well and she graduated from Carnegie Mellon and since then she's been working. Now she's in San Francisco and she's doing some very good work in theater as a writer, as an actor also. Wow. So that's it. वो इमरान वहीं पे हैं, उनकी वाइफ जो है she's a designer of clothes and they are in Washington, but soon they will be moving to San Francisco where their daughter is. अच्छा
अच्छा, तो अभी तो उस्मान साहब आपने बहुत बताया पिछले सालों के बारे में, मगर मुझे ये पूछना है, मेरा ज़ाती, मैं अक्सर सोचती हूँ, वारिस एक ड्रामा होता था और एक दिन मैं उसे देख रही थी एंड आई कुडंट स्टॉप वॉचिंग इट जब तक मैं लास्ट एपिसोड पे नहीं पहुँच गई। तो मेरा सवाल ये है कि क्या उस ज़माने में जो प्रोग्राम बनते थे, कहते थे गलियाँ सुनसान पड़ जाती थी, और अभी भी वैसा काम हो रहा है, या क्या वजह है कि बहुत कमर्शलाइज हो गया है सारा कुछ? देखिए, वो तो गलियों की बात थी उस जमाने में, अब गलियों से बात निकल के आगे जा चुकी है। You see, now you have YouTube, and this YouTube reaches out to millions and millions of people. Yes, that's one of the reasons. And अभी मेरा एक सीरियल था, उसका नाम है खुदा और मोहब्बत। जी जी So I was amazed to see कि पता नहीं कितने मिलियन टच डाउन्स हैं और कितने मिलियन लोग, तो पूरी दुनिया में लोग उसको देख रहे हैं। जी तो अब हमारी एंटरटेनमेंट की को देखने की तरीके और एंटरटेनमेंट को पेश करने के तरीके बहुत बदलते चले जा रहे हैं, और ये नई दुनिया में बिल्कुल ही बदल जाएंगे। अब देखिए ना, आप वहां पे बैठी हैं और मैं इधर जूम पे इधर बैठा हूँ पाकिस्तान में, और हम दोनों बात कर रहे हैं। सो टेक्निकली तो अब जो एंटरटेनमेंट है, खासतौर पे विजुअल मीडियम की एंटरटेनमेंट, जिसको हम टेलीविजन भी कहते हैं और फिल्म भी कहते हैं, वो एंटरटेनमेंट जो है, अब जरूरी नहीं कि आप सिनेमा घर में जाके बैठ के देख सकें, क्योंकि ये कोविड ने 2 साल में बड़ा हैवक प्ले किया है विद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, खासतौर पे फूड इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सेपरेट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, फूड फ्लरिश्ड, यस जी एंड आई थिंक कि आइंदा हमको चीजें जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे बनाने की हैं, बिकॉज पूरी दुनिया अब जो है वो कोई दूर नहीं रही। आप एक बटन दबाएंगे और आप दूसरी पता नहीं कहां से कहां चले जाएंगे। अभी मैं और आप देखिए बात कर रहे हैं, आप ह्यूस्टन में बैठी हैं, मैं लाहौर में बैठा हूँ, एंड वी आर टॉकिंग एंड ऑन रियल टाइम। आपके वहाँ दोपहर है शायद, हमारे यहाँ पे हल्की सी रात शुरू हो चुकी है। दैट इज अबाउट इट बेसिकली, बट दी for viewers to watch us, they don't need to go on a channel. They can communicate all they the can time. go on, if you as a channel are on YouTube, they can watch you on YouTube. Yeah. एक जमाने में ये था कि सड़कें खाली हो गई हैं जी, लोग शादी घर पे नहीं जा रहे, शादी को अपना जब तक के वो नहीं देखेंगे, एपिसोड नहीं देखेंगे, तो अब वो बात खत्म हो गई है, क्योंकि अब कोई भी 8 बजे बैठ के सच के सीरियल नहीं देखने के लिए तैयार। रात को 11 बजे लगा लेंगे, सुबह 7 बजे लगा लेंगे, दूसरे दिन दोपहर को लगा लेंगे, एंड यू नेवर मिस योर प्रोग्राम, यू नो, यू आर ऑलवेज देयर, एंड यू कैन वॉच योर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एट योर ईज टाइम, व्हाट टाइम यू हैव। सो मैं समझता हूँ कि इस बदलते हुए पर्सपेक्टिव में एंटरटेनमेंट के जो स्क्रिप्ट्स हैं, एंटरटेनमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे बदलते चले जा रहे हैं। जी जी, हम अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और विल बी राइट बैक। नाजरीन, छोटी सी ब्रेक है और ये इंटरेस्टिंग सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, जाइएगा नहीं। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू हुमैरा शो। तो दोबारा से इस वक्त हम उस्मान पीरजादा साहब के साथ बैठे हुए हैं, तो बातचीत शुरू करते हैं। उस्मान साहब, मेरा सवाल ये है कि बॉलीवुड, जो इंडिया आपका हमसाया मुल्क है, उसके साथ आपने कोलैबोरेशन में कोई काम किया या कोई प्लान किया, ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ? नहीं जी, मैंने कोई ऐसा तो नहीं कि कोलैबोरेशन में काम किया उनके साथ, लेकिन मैंने मेरे जो यहाँ पे हमारे फेस्टिवल्स जो हम रफीकी थिएटर वर्कशॉप करती रही है, जो वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल्स कहलाते हैं, 19-20 साल जो हमने फेस्टिवल चलाए, उनमें हमारे हमसाया मुल्क से, हिंदुस्तान से तकरीबन मैं समझता हूँ कि 5-6 हजार आर्टिस्ट आ चुके हैं पाकिस्तान परफॉर्म करने के लिए। जी जी। और जाहिर है कि अक्रॉस द बॉर्डर हमारी दोस्तियां भी हैं अपने हम पेशा फनकारों से, राइटर्स से, एक्टर्स से, और एक दूसरे का काम हम एंजॉय भी करते हैं। अब when we look at each other's work, so हिंदुस्तानी आर्टिस्ट बहुत पाकिस्तान आए हैं, खासतौर पर मेरे फेस्टिवल में। एक फेस्टिवल में आप सोचिए 200-250, 200-250
आर्टिस्ट आते थे। दो चीजें, एक तो पाकिस्तान आना बहुत इजी, अमृतसर से दे वुड जस्ट क्रॉस ओवर इनटू पाकिस्तान, या हिंदुस्तान से जहां से भी मर्जी वो आ रहे हैं, चाहे कर्नाटका से आ रहे हैं, दे टेक अ फ्लाइट टू अमृतसर एंड जस्ट वॉक इन टू पाकिस्तान। दूसरा ये कि हम हमारी जुबान भी तकरीबन एक ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पुनर्जोत, जिसका नाम सांझते, हमारी वो जुबान जो दोनों बॉर्डर्स के अक्रॉस बोली जाती है, पंजाबी जुबान, उसकी सेलिब्रेशन थी वो, बेसिकली वो फेस्टिवल। और वो फेस्टिवल जो है वो वाज वेरी पॉपुलर, बिकम वेरी पॉपुलर इन अमृतसर। अब चंद साल ऐसे हो गए हैं कि कुछ थोड़ी सी जो भी हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन रही है, उस वजह से ये तकरीबन फेस्टिवल खत्म हो चुका है। We are trying to revive it again, but it depends on both the countries. क्या कहेंगे कि किस तरीके से वो एक दूसरे को देखते हैं, क्या they really want peace between the people of both the countries. हमारा तो ये है कि आर्टिस्ट जो है वो बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है, जिस तरह हमारे सिंगर्स हैं या वहाँ के सिंगर्स हैं। अब अगले दिन लता जी की वफात हुई है, हमें इस तरह दुख हुआ कि हमारे लिए वो उतनी ही इम्पोर्टेंट थी, उनकी गायकी, और देयर आर इयर्स एंड थिंग्स, हमारी पीछे की तारीख उनके गानों के साथ भरी पड़ी है, जो उन्होंने 1950 में गाया या 1935 में गाया, व्हाटएवर। सो जिस तरह मलका तरन्नुम नूरजहां थी, जिस तरह आबदा परवीन है, जिस तरह गुलाम अली साहब हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो कि दोनों ममालिक में पीपल एंजॉय देम, एंड आई डोंट थिंक कि आर्टिस्ट को पॉलिटिकली कहीं पे इस्तेमाल करना चाहिए। आर्टिस्ट आर, मतलब the whole world is open for an artist. ये हमारा, मेरी यही सोच रही है। So we've had some very interesting relationships with India as far as artistic work is concerned, जिसमें सिनेमा हायल नहीं हुआ, लेकिन थिएट्रिकली और म्यूजिक और डांस में हमने आपस में हिंदुस्तान के साथ बहुत काम किया है। तो अभी पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट्स इस तरह के बने हैं जिनमें प्रॉपर अदाकारी और ये शो बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशन? अच्छा, ये जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो मुशर्रफ साहब ने कराची में जी एक एक्टिंग स्कूल खुलवाया, अच्छा, जिसको ज़िया मुहिद्दीन साहब ने डिजाइन किया, और अच्छा, वही उसके हेड थे, अच्छा, उसके अच्छा, प्रिंसिपल थे। अच्छा, और वहाँ पे बच्चों को एक्टिंग की तरबियत दी जाती है, एंड अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट ओके, कॉल्ड नापा, नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी, यू नो। अच्छा, सो वो सिर्फ कराची में है। जी जी, जहाँ तक कि जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि हमने एक दूसरे से सीखा, क्योंकि स्कूल तो यहाँ पे थे नहीं, उस्ताद जो थे वो मोस्टली प्रोफेशनल जगहों पे थे, लाइक जिस तरह रेडियो जो था, ड्रामे ने रेडियो ने ड्रामे को बहुत स्ट्रेंथ दी, क्योंकि ड्रामा का लिखारी और ड्रामे का परफॉर्मर जो है वो सब रेडियो में ट्रेन हुए। क्योंकि आई नो दैट वेरी वेल एज अ चाइल्ड, बिकॉज मेरा रेडियो बहुत जाना होता था, बिकॉज मेरे वालिद was one of the pioneers of the radio drama in the subcontinent. So ये काम पाकिस्तान में अब लाइक रफी पीर थिएटर वर्कशॉप, हम कोई ऑर्गेनाइज स्कूल नहीं है अभी हम, लेकिन इसके बावजूद वी हैव ट्रेन्ड so many people, यानी कि पिछले 35-40 साल में आज हमारे ट्रेंड जो लोग हैं माशाल्लाह, वो चैनल्स चला रहे हैं, और वो डायरेक्टर्स हैं, वो प्रोडक्शन डिजाइनर्स हैं। सो वी ट्रेन्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल। और ये जिस तरीके से हमने यहाँ पे फेस्टिवल्स किए थे, आप सोचिए कि दुनिया भर से 500-600 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आते थे, और 11 दिन का ये फेस्टिवल चलता था। 11 दिन के अंदर बेशुमार आर्ट स्टूडेंट्स जो हैं फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस फ्रॉम अक्रॉस लाहौर ऑल्सो, यानी कि फैसलाबाद से भी और मुल्तान से भी और इस्लामाबाद से भी ये वॉलंटियर्स आके काम करते थे। So when you bring in these young people, they were exposed to international performance. They were exposed
टू वो अपनी लाइटिंग किस तरह कर रहे हैं, they were exposed to उनका सेट किस तरह का है, उनके कॉस्ट्यूम्स कैसे हैं, how are they projecting this particular play, और कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हो रही है इसके अंदर, बिकॉज आज के दौर का थिएटर जो है उसके अंदर बहुत सारी थिएटर से अलहदा जो मैं समझता हूँ कि जो जो विजुअल आर्ट्स है वो भी इन्वॉल्व हो चुका है थिएटर के अंदर। सो ये नई चेंजेस और ये नई चीजें जो हैं बच्चों ने इधर से सीखी, हमारे फेस्टिवल से, और फेस्टिवल के अंदर जो कॉन्सर्ट्स और म्यूजिक जिस तरह का आया, पूरी दुनिया से जो म्यूजिक आया, उस म्यूजिक से, और जो सूफी म्यूजिक जिस तरह हमने प्रमोट किया पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद ये जो चीजें रूनमा होती हैं आपको नजर आती हैं, चीजें लाइक कोक स्टूडियो आप ले लें, कोक स्टूडियो इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द फेस्टिवल, वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल जो हम यहाँ पे किया करते थे। तो जो और सूफी म्यूजिक तो बहुत कम लोग थे सुनने वाले, हमारे गायक जो थे उनको कभी भी इतनी सिर्फ ये था कि एक लिमिटेड सिचुएशन थी, लेकिन जब से हमने फेस्टिवल सूफी करना शुरू किया, उससे रीच्ड आउट टू अ larger audience across the country, you know। फिर हमने उस सूफी फेस्टिवल को सिर्फ लाहौर तक कैद नहीं किया, उसको हम मुल्तान शहर में भी लेकर गए जो कि वैसे ही सूफियों का शहर है, वहां से फिर हम उसको इस्लामाबाद लेकर गए, हमने कराची में खेला जाके, लेकिन उसका मेन घर लाहौर ही रहा क्योंकि यहीं पे ज्यादा सूफी फेस्टिवल हमने। अब हमारे पास जो रवायत और जो ट्रेडिशन है सूफिक पोइट्री की और सूफिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो दुनिया को भा रही है इस वक्त, यू नो। यहाँ के जिस तरह हमारे ये थे सूफी सिंगर आबदा को आप देखिए, दुनिया में वो गाती हैं जिस तरीके से, उनको लोग घोड़े भी सुनने आते हैं, जो हमारे ये साईं ज़हूर, साईं को we just discovered him, I mean he was always there with all his talent, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो when we brought him out and he performed on our stages, and then मेरे छोटे भाई फैजान, he took him to the BBC, जो एक वो होता था contest वहाँ पे, so वहाँ पे साईं ज़हूर साहब won the best voice of the year award, you know, a basic Milan, a simple guy, you know, rose to international standard, and I think उसके अंदर रफीक थिएटर वर्कशॉप की, हमारे खानदान की बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपने में मियां मिट्ठू बनूं और अपनी नहीं, इस वक्त तो हम आपके बारे में जानना जो काम है वो ज़ाते खुद हमारा काम बोलता है। We have done it, you see, it's not that कि हम करेंगे, हुआ था, हम यूं थे, तब यूं था, we are still there, and I think as a family what we have contributed in the field of creative arts is unprecedented. आपको हमारे जैसे खानदान की मिसाल हमारे खित्ते में नहीं मिलती। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपने पैसे से ये पूरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स खोला हुआ है। ये हम बेच बिचा के करोड़ों रुपए कमा के भाग जाएं, जाके कहीं पे कनाडा में रहना शुरू कर दें या आपके पास अमेरिका में आ जाएं, ये we can't do that. You know, we are from here. We need to, जो हमारे बुजुर्गों ने सोचा, जो हमारे वालिद ने सोचा कि जो आर्ट्स हैं वो इस तरीके से होंगे। जी। अच्छा, तो ये मुझे हमारा मसला ये रहा कि जब भी हम कल्चर की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो पता नहीं क्यों हमारे अफसरान वाला जो हैं, जो या पॉलिटिशियंस जो हैं, वो घबरा से जाते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है वो सारी फ्यूडल है जी, और फ्यूडलिस्टिक थॉट के अंदर, हर फ्यूडल माइंडसेट के अंदर जो परफॉर्मर है वो मरासी है, क्योंकि उनके अपने इलाकों के अंदर उनकी मरासने और मरासी एक ट्रेडिशन चली आ रही है कि शादी घर में होगी तो वो बेचारी वो जो मरासने हैं वो आके गाने गाएंगी, और सो दे हैव नॉट येट कम आउट ऑफ दैट थॉट कि जो दुनिया है ये कितनी बदल चुकी है, और इस तरीके से एक आर्टिस्ट जो है, ही इज अ फेस ऑफ द कंट्री, यू नो।
बिल्कुल। And a politician is not a face of a country. Face of a country is a sportsman. Face of a country is a painter, a singer, a musician, an actor, a filmmaker. That is a face of a country. ये लोग Very nice. बताते हैं कि हम कौन से खित्ते से, हम कौन से मुल्क से बिलोंग बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। अगर आपने किसी कौम, किसी मुल्क में अगर आप लैंड करते हो और आप नहीं जानते कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ का है, आप सिर्फ स्ट्रीट पे जाके उनका खाना खा लें और सिनेमा घर में जाके उनकी फिल्म देख लें या थिएटर में जाके उनका ड्रामा या मौसीकी सुन लें। जी जी 2 मिनट में पूरे मुल्क का एक्सरे जो है वो बाहर निकल आएगा, आपको पता लग जाएगा ये कौन लोग हैं। जी। नहीं, तो आपकी बातें जो हैं, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जो थिएटर है वो पाकिस्तान में उसका क्या फ्यूचर है, क्योंकि ऐसे लगता है कि थिएटर इज डाइंग और ऑलरेडी डाइड। जी यहाँ पे थिएटर बहुत ही वीक रहा है। यहाँ पे जिस दौर में हमने थिएटर शुरू किया करना वो कुछ और चीज थी। उसके बाद भांड मरासियों का थिएटर आ गया जहाँ पे जुगत और ये सारी चीजें चलना शुरू हुई। I don't mind comedy. I have worked with all kind of comedians. I have worked with हमारे जो टॉप, जिनको हम भांड कहते हैं बेचारों को, उनके साथ भी हमने काम किया है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे हुकूमती सतह पर, फॉर इंस्टेंस, लाहौर इज दी ओनली सिटी जहाँ पे प्रॉपर थिएट्रिकल हॉल्स हैं which were constructed by the government of Punjab. And उन थिएट्रिकल हॉल्स में अनफॉर्चुनेटली एक भयानक और बड़ा घिनौना और बड़ा गंदा किस्म का थिएटर होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जब आप चीजों को सुप्रेस करना शुरू करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप यूं नहीं कर सकते, तो फिर वो चीजें म्यूटिलेट होके गंदी शक्लें इख्तियार करके निकलती हैं। तो हमारे थिएटर ने एक बहुत ही गंदी शक्ल इख्तियार की, जो कॉमन थिएटर, जो कॉमन मैन का थिएटर है, जो कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा कॉमन मैन जो है वो इतना पस्त हो चुका है। ये हमारा कॉमन मैन नहीं, ये वो मर्चेंट बरादरी है। ये वो लोग हैं जो कि 1500 और 3-3 हजार का टिकट खरीदते हैं। दे आर बेसिकली गोइंग टू, they used to go to the Notch girls, you know, Hiramandi or whatever, you know. So suddenly वो सारा नाच नोच गाना माना सारा थिएटर में ही आ गया, you know. हालांकि थिएटर उससे थिएटर का जुज़्व है, म्यूजिक भी है, डांस भी है, but not like the way it is happening. It has been happening and now how it is happening. अच्छे comedians, let's say सोहेल अहमद, उन्होंने थिएटर करना छोड़ दिया है। Just for this reason कि थिएटर तो अब सिर्फ नाचने वाली बेचारी लड़कियों का काम रह गया है, उसके अंदर एक्टर का कोई अमल दखल नहीं है। So ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ठीक करने का है। And I think कि गवर्नमेंट could have done a lot, but again I would say कि गवर्नमेंट की कोई प्रायोरिटी नहीं है। Culture is no priority of government, even today and not even in the last bit. Culture के बगैर कोई कौम जो है वो फ्लरिश नहीं कर सकती, इकोनॉमिकली तो राइज ही नहीं कर सकती। जिस कौम की कल्चरल नींव है, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन, जी जी, जिस पे बिल्डिंग आपकी खड़ी है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है, कोई दुनिया का मुल्क मुझे आज दिखा दे कि उसने तरक्की की हो, वो पस्तियों में ही जाएगा। सो हमें अपने जो हमारी रवायात हैं, जो हमारी अपनी तहजीब रही है, जो हम इस खित्ते में हमारा शिवा था, जो हमारी पोइट्री थी, जो हमारा आर्ट था, जो हमारी पेंटिंग थी, जो हमारा ड्रामा लिखा गया, उम्दा लोगों ने जो लिखा, बहुत कम लिखा लेकिन लिखा। इन चीजों की जरूरत है कि इन चीजों को हम अपने बच्चों तक पहुंचाएं, और अपने बच्चे जो हैं वो बड़े हाईली टैलेंटेड हैं। अल्लाह ताला ने गिफ्ट किया हुआ है। आप देखिए कितने म्यूजिशियंस यंग निकल रहे हैं, कितने बच्चे गाना गा रहे हैं। वो कहते हैं ना उस्ताद एक गोली मारे उस्ताद को, एटलीस्ट दे आर मेकिंग म्यूजिक, दे आर मेकिंग पोएट्री, दे आर सिंगिंग देयर सॉन्ग्स। You see, मैं यही पूछने वाली थी कि नई नस्ल को आप, हाँ, नई नस्ल के लिए क्या मैसेज है? आप जब एक कौम से उसकी हैप्पीनेस छीन लोगे, you know what is the happiness of a nation? जी, ये पीछे यहाँ पे PSL क्रिकेट चल रहा था, ये कल परसों, आज भी है मेरा ख्याल है, उसकी वजह से पूरी ट्रैफिक का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। जी जी, you know, वो टीमें जब निकलती हैं और वो फिर एक हंगामा मचता है। इट इज सो डिफिकल्ट, टाइम्स हैव कम के जब वो बड़ी एक इजी चीजें हमें नजर आती थी,
वो अब बहुत मुश्किल हो चुकी हैं कि क्रिकेट मैच भी जो है हम ऑडियंस को डिस्टर्ब किए हुए सड़कें 10 बंद किए बगैर नहीं कर सकते। जी तो जी भाई फिर कोई तरीका ढूंढो। जी आप जी जरूरी उनको उठा के लेके जाना है इंटरकॉन्टिनेंटल में ठहराने के लिए इतना लंबा डिस्टेंस, जी बट it's a sport that people enjoy and people love. So to जी give them, that doesn't mean that you disturb half of the city by जी जी blocking roads. क्योंकि जी जो क्रिकेटर्स की वो बस निकली है उसने माल रोड पे पहुंचना है, वो भाई उन्होंने अंदर ही रखो, जी जी अंदर ही खोलो होटल्स। जी उस्मान साहब हाँ आप हाँ पैसा इतना पैसा आप जुए के अंदर जी लगाते हो उसके अंदर, जी build hotels, जी ask जी somebody to come and make a hotel. जी जी उस्मान साहब, मैं चाहूंगी आप बताएं हमारी नई नस्ल के लिए आपका क्या मैसेज है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या एडवाइस करेंगे आप? हमारी नई नस्ल माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड है, हमारी नई नस्ल इज वेरी प्रॉमिसिंग, बट देयर आर फ्यू थिंग्स मिसिंग इन आवर नई नस्ल। वो अपनी तहजीब को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, उसको उनकी स्टडी भी बहुत कम है उसमें। अपनी खास तौर पे मैं पंजाब के हवाले से बात करूंगा कि यहाँ पे बच्चे जो हैं पंजाबी जुबान के अंदर बात भी नहीं कर सकते स्कूलों में, जो हमारे इंग्लिश स्कूल्स के बच्चे हैं। जी जी उनको रवायत का क्या पता लगेगा, उनको क्या पता लगेगा कि हमारे सूफिया कलाम क्या लिख गए हैं, उनको क्या पता लगेगा कि हमारी जो 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 फोकलोर है वो है क्या, यू नो। अगर आपको ये चीजों का नहीं पता लगेगा, बहुत सारी चीजें तो वैसे ही खत्म हो चुकी हैं। वो छोटी छोटी खेलें जो हमारे यहाँ पे शहरों में और देहातों में इन थी, वो अब नहीं खेली जाती। यू नो, वी हैव कम इनटू अनदर जी वर्ल्ड। फॉर इंस्टेंस द आर्ट ऑफ द पपेटियर, हाँ जो पुतली तमाशा करते थे, कठपुतली का खास तौर पे, जो हमारे जो ट्रेडिशनल पपेटियर्स थे, जी जी वो बेचारे नापैद हो गए बिकॉज वी नेवर प्रोटेक्टेड हाँ देम। हाँ उनके साथ पूरी एक रवायत, एक ट्रेडिशन खत्म हो गई, यू नो। आप हमारे हमसाया मुल्क को देखें, उन्होंने किस तरह उनको प्रिजर्व किया हुआ है। प्रिजर्व करने की जयपुर के अंदर पूरा पपेट नगर बना हुआ जी है। जी व्हाई कुडंट वी डू दैट हियर? वी ट्राइड। रफी पीर थिएटर वर्कशॉप ने पिछले 25-30 सालों में वी सपोर्टेड 7 फैमिलीज ऑफ द पुराने ट्रेडिशनल पपेटियर्स कि भाई खुदा का वास्ता अपने अब्बा अजदाद का काम मत छोड़ो, हाँ बिल्कुल। क्योंकि अगर उन्होंने अपने बच्चों को बॉइल्ड एग्स जी बिकवा रहे थे। वो रेलवे स्टेशन पे उनके बच्चे बेचारे जाके जी बॉइल्ड एग बेच रहे हैं, या वो ईंटें लगा रहे हैं, या कोई और काम कर रहे जी जी हैं, जी जो कि मजदूरी मेरे नॉट दिस बिकॉज इसके अंदर पैसा नहीं है, जी जी इसलिए कि टेक्नोलॉजी बदल गई है। वी हैव अनदर वर्ल्ड, वी अच्छा वुड मच रादर dub bad American cartoons, which are violent cartoons, and show it to our kids, जी which is जी not on जी जी anywhere in the world. उस Those kind of things should not be shown. उस्मान साहब, आपसे बातें करने का बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म होने वाला है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिए जो TV1 है ख़ास तौर पे, और हमारे व्यूअर्स जो हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे इधर USA में जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? जी, क्या मैसेज दे सकते हैं हम उनको? आप वो आपको मिस नॉट अ करते मैसेज, हैं, आप सबको बट मिस आई कैन करते हैं। ओनली से दैट अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। आप अपने वतन से दूर रह रहे हैं, लेकिन मेरी ये एक गुजारिश है बाहर रहने वालों से कि अपने बच्चों को अपनी रवायत से दूर न करें। अपने बच्चों को आप उनकी जो उनके आबा-ओ-अजदाद की जुबान है, उसकी पोइट्री, उसका ड्रामा, उसकी शॉर्ट स्टोरी, उसका नावल, उनको जरूर पढ़ने के लिए दें। चाहे आप बलूचिस्तान से हैं या आप सिंध से हैं, अगर आप पंजाब से हैं या आप पख्तूनख्वा से हैं, इन तमाम इलाकों को आप अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि पाकिस्तान इज अ वेरी लकी कंट्री दैट वी हैव सच वंडरफुल प्रोविंसेस, और हर प्रोविंस की अपनी एक फोकलोर है, हर प्रोविंस के अपने रंग हैं, हर प्रोविंस का अपना एक रूप है। मुझे तो कई दफा दुख होता है और रोना आता है कि हम क्यों इधर सेलिब्रेट नहीं उनको करते। हमने तो अपनी बसंत भी मर्डर करके फेंक दी हुई है, जस्ट बिकॉज सम रास्कल्स वर यूजिंग दिस बैड तंदी, जिससे लोगों की गर्दनें कट रही थी। इस तरह तो स्पेन में बुल फाइटिंग ही खत्म कर दी जाए, हालांकि वो एक ट्रेडिशन का हिस्सा है और उसमें भी होते हैं, जी जी कई दफा मर भी जाते हैं। हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप
पूरी की पूरी एक रवायत को, एक पूरी ट्रेडिशन को, एक पूरे फेस्टिवल का मर्डर कर दें, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो मसला बड़ा है वो उन कारीगरों का है जो काइट मेकर्स थे, वो पूरी इंडस्ट्री जो है वो जामिद हो गई है। It's so sad, but यानी आप कह रहे हैं कि nobody is कल्चरल taking टाइज, any notice of it, because वो एक हिंदू त्योहार है, ये कहा जाता है। मुझे वो हिंदू त्योहार या मुस्लिम त्योहार मैं नहीं उसको कहूंगा, वो इस खित्ते का त्योहार है, इस इलाके का त्योहार है। So we need to celebrate. So please, people who are from Pakistan, even from India, please celebrate your please celebrate your culture, and don't let your children to be away from their culture. They must, of course, जो अमेरिका में रह रहे हैं वो अमेरिकन कल्चर भी अडॉप्ट करेंगे, जाहिर है अमेरिका इज देयर कंट्री, बट जिस रास्ते से आप आए हैं यहाँ पे, जो आपके खानदान का एक लिंक है, जो सारी जिंदगी वो लिंक रहेगा, जिसको आप कभी भी तोड़ नहीं सकते, उस लिंक को बरकरार रखने के लिए यू मस्ट जी। teach your children. बहुत शुक्रिया उस्मान पीरजादा साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, स्पेशली उस्मान साहब। थैंक यू जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, और अगली दफ़ा हम फिर आएंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।